Good morning, students. Our today's topic is regulation of kidney function. That function is regulated by hypothalamus, JGS apparatus, and the heart. So, first about hypothalamus. Osmoreceptors in the body are activated by changes in blood volume or ionic concentration. When in our body the blood volume changes or ionic concentration changes, change in blood volume or ionic concentration occurs, the osmoreceptors in our body detect this change. So, when excess loss of fluid from the body activates the receptors which stimulate hypothalamus. अगर अपनी बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाए तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं. देन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस एडीएच और वेसोप्रेसिन. ADH or vasopressin means same thing. Hypothalamus produces antidiuretic hormone ADH or vasopressin. ADH is released through neurohypophysis of pituitary gland. In the pituitary gland, anterior part is present and posterior part is present. So neurohypophysis is the posterior part of the pituitary gland. ADH is released through neurohypophysis of pituitary gland. ADH acts on DCT and collecting tubule. The ADH which is released by the pituitary gland, it acts on distal convoluted tubule and collecting tubule. Here the reabsorption of water occurs from these tubules, thus preventing diuresis. Diuresis is a condition when excess loss of water occurs through urine from our body. The more water goes out through urine, so that condition is diuresis. So it prevents diuresis because ADH help in absorption of from the DCT and collecting duct. More water is absorbed through these distal tubules and it prevents diuresis. ADH is vasoconstrictor of blood vessels. Vasoconstrictor means help in constriction of the blood vessels. Their lumen becomes less or constriction occurs in the blood vessels. Contraction occurs, which increases the blood pressure and glomerular filtration rate. So when the lumen becomes less or vasoconstrictor is there, blood pressure increases. When blood pressure increases, filtration rate also increases because more blood will come in filtrate, more filtrate will be formed, so it increases the glomerular filtration rate. An increase in body fluid volume can switch off osmoreceptors and suppress the ADH release. When the volume is maintained of the blood, then ADH is stopped. The osmoreceptors detect this and stop the secretion of ADH release. So this is the function of hypothalamus. Again, हाइपोथैलेमस अपनी बॉडी में कुछ रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि अगर बॉडी का फ्लूइड कम हो जाए, बॉडी में ब्लड फ्लूइड कम हो जाए या फिर आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और इसका मैसेज हाइपोथैलेमस को दे देते हैं. जब हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आया तो उसने एडीएच सिक्रीट करेगा. एडीएच जाकर डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा और वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा. सोडियम आयंस भी अब्जॉर्ब होंगे और वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा. जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जब अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं उनके पास फिर मैसेज आएगा कि वॉल्यूम बढ़ गया तो वो एडीएच को स्विच ऑफ कर देंगे ताकि उसका सिक्रीशन अब और ना हो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज JGA, दैट इज द juxta glomerular apparatus. These are present in the kidney. JGA cells are present in the kidney where the efferent and distal tubule combines. There are some more specialized cells are there. They are known as JG cells. A fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure or GFR can activate JG cells.
अगर यहीं पे ब्लड वॉल्यूम कम हो गया या फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई तो जेजी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके पास सेंसेशन चली जाती है और वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन। यहाँ रेनिन का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिंगल एन है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने रेनिन पढ़ा है, दैट इज डबल एन, हियर RENIN, रेनिन। सो इन अवर ब्लड एंजियोटेंसिन वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट, सो रेनिन स्टिमुलेट angiotensin and convert that into angiotensin 1. So first JG cells becomes activated because of the low pressure or low blood flow. They secrete renin. Renin converts angiotensin into angiotensin 1 and then to the angiotensin 2. Angiotensin 2 is a strong vasoconstrictor. It helps in the constriction of blood vessels. When blood vessels constrict, उनका ल्यूमेन कम हो गया, it increases the blood pressure and thereby glomerular filtration rate. उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा. Angiotensin 2 act on adrenal cortex to release एल्डोस्टेरॉन, ये एक अनदर फंक्शन है. तो जो एंजियोटेंसिन 2 बना ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल ग्लैंड के बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स है, उसको भी स्टिमुलेट करता है और एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवाता है. ये भी एक हार्मोन है. एल्डोस्टेरॉन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम DCT. वही सेम फंक्शन जैसा ADH कर रहा था, तो एल्डोस्टेरॉन भी आकर DCT से एब्जॉर्प्शन करवा रहा है. दिस इंक्रीजेज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड GFR. तो इस तरह से जब मोर वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड में पानी का आ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ जाएगा, GFR बढ़ जाएगी, तो इस तरह से वो डिटेक्ट कर लेंगे. तो इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म. दिस मैकेनिज़्म इज ऑल्सो नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म. आई होप दिस इज क्लियर. क्या हुआ, JG सेल्स हैं, अपने किडनी के अंदर ही JG सेल्स हैं. अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया या फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई तो ये सेल्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और रेनिन सिक्रीट करते हैं. जब एंजियोटेंसिन, जो ये रेनिन है, ये एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में और बाद में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देती है. जो एंजियोटेंसिन 2 है ये स्ट्रॉन्ग वासोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन कर देती है, कंप्रेस करती है. तो उससे क्या है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है. जहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा ब्लड आएगा, प्रेशर के साथ आएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, तो मोर फिल्ट्रेट बनेगा, तो उससे GFR भी इंक्रीज हो जाती है. तो एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स पे भी हेल्प स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं. जो एल्डोस्टेरॉन भी DCT पे एक्ट करता है ताकि और वाटर और Na आयन ऑब्जॉर्ब हो सकें, जिससे कि वॉल्यूम ब्लड का बढ़ जाता है, GFR रेट बढ़ जाती है. तो ये सारा उसको कंपनसेट कर रही है जो पहले फॉल हो गया था. तो इस तरह से ये रेगुलेट करता है और उसको बाद में नॉर्मल लाता है. इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म. तो अभी तक हमने जो दो पढ़े हैं, हाइपोथैलेमस एंड JGA, दे बोथ, अगर ब्लड वहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया था या लेस हो गया था ब्लड प्रेशर, तो उसको वो एक्टिवेट किए. अब दूसरा है, थर्ड वन है द हार्ट. अगर क्या है ये, अगर हमारा पहले से ही ये एक्ट करता है, ये है वासोडायलेटर. पहले से ही हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा है और फिल्ट्रेशन रेट भी ज़्यादा है, अब उसको कम करना है, तो यहाँ पे ये हार्ट इफ़ेक्ट करेगा. तो ये आपस में हाइपोथैलेमस JGA एक तरह का फंक्शन कर रहे हैं और जो हार्ट का एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर है ये उसके ऑपोजिट काम कर रहा है. जो पहले दो थे वो वासोकंस्ट्रिक्टर थे, वो ब्लड वेसल का फ्लो इंक्रीज कर रहे थे. ये वासोडायलेटर है, ये डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल कर रहा है जिससे कि उसका डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो ये इनके ऑपोजिट काम कर रहा है हार्ट. तो एक तरह से अपनी बॉडी में सेल्फ मैकेनिज़म्स बने हुए हैं कि अगर बढ़ जाएगा ब्लड वॉल्यूम या GFR तो कौन सा सिस्टम वर्क करेगा, और अगर कम हो जाएगा तो कौन सा सिस्टम वर्क करेगा. जैसे कि अभी हार्ट है, थर्ड है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय द हार्ट.
द वॉल्स ऑफ द एट्रिया ऑफ हार्ट सिक्रीट एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। जो वॉल की हार्ट जो एट्रियल की वॉल्स हैं, एट्रियम की वॉल्स हैं हार्ट की, वो एक फैक्टर रिलीज करती हैं जिसे कहते हैं एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ये है एक वासोडाइलेटर, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स। तो डायलेशन कॉजेज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। डायलेशन हो गया, ब्लड वेसल्स और खुली हो गई, उनका ल्यूमन बड़ा हो गया, तो उससे उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया।